done the synopsis properly, because right now I'll be starting with the level 1 objectives, because introductory, most of the questions were covered in the synopsis video lectures. Okay, so I think you all must have made the synopsis and everything. And now, on the basis of that, we'll be starting with our level 1 objective, DC Pandey, question number 1. So, this is level 1 objective, DC Pandey. ठीक है, question 1. So today we are aiming to do at least 35 questions at least. And see, a particle executes simple harmonic motion with a frequency of, the frequency is given as 2.5 hertz, and the time period amplitude is given as 2 meter. Can anyone tell me what will be the time period? 1 by f. Hello, can I write this as 0.4 seconds? Now they are asking you speed of the particle at 0.3 seconds. So they are telling you that we need at 0.3 seconds, what is the speed at this moment? So if we see the SHM, this is the mean, this will be the right extreme and this will be the left extreme. The particle starting from mean position, यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा राइट एक्सट्रीम पे? किसको पता है क्या? यहाँ से यहाँ तक, हेलो बोलो, ये टाइम कितना लगेगा? 0.1 सेकंड. T/4, बराबर? Yes, sir. Then it returns back. कितना टाइम लगा? T/2. फिर इधर गया, कितना टाइम लगा? 3T/4. एंड देन वापस आके वो T बन जाएगा. अच्छा, you know that the total T is 0.4 and this T is 0.3. What is the relation between छोटो t and बड़ो t? Can I say छोटो t is, look at this ना बाबा, look ना, छोटो t by बड़ो t कितना होगा रिलेशन? Yes or no? Can anyone tell me where is the particle? Left extreme. Left extreme. तो इधर है, जाने का इधर है उसको. But at this instant, how much is the velocity of the particle at extreme position? कितना होता है? 0. 0 होता है. So answer is 0. ठीक है ना? Because when the particle is there at the extreme position, velocity is 0, and when the particle is there at the mean position, velocity is maximum. You know it, right? And which formula will I apply? General, omega under root a square minus x square. Can I say at x is equal to plus minus a, v is 0, and at x is equal to 0, v is maximum, which is omega a. Hello, do you know it, right? Do you know this thing? Yes, sir. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? A particle performing linear simple harmonic motion, if the instantaneous acceleration and velocity are a and v respectively, identify the graph. तो हमको रिलेशन मांगता है यहाँ पे v स्क्वायर और a स्क्वायर के बीच में, v स्क्वायर एंड a स्क्वायर के बीच में. ठीक है, now look carefully. Suppose if I consider an equation v is
वी नॉट साइन ओमेगा टी, हार्मोनिक फंक्शन है ना, कॉस या साइन दोनों में से कोई भी ले लो चलेगा, जैसे आई एम अज्यूमिंग। हेलो, क्या कर रहा हूँ मैं, इसको अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। कोई बता सकता है इससे एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? हेलो, डेरिवेट। अरे बेटे ये हो जाएगा वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यस और नो? हेलो, अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इधर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा v बाई वी नॉट इज साइन ओमेगा टी, एंड दूसरा वाला बन जाएगा a बाई वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये दोनों ऐसे बना दिया मैंने। अब दोनों को स्क्वायर एंड ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज वी स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर एंड a स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दिस विल रिजल्ट इन वन ओनली। हेलो, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज गोना बिकम वन और नॉट? हेलो, ये समझा आपको? हेलो, डिड यू गेट दिस थिंग? डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो, यस और नो, क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, इसको हमको चाहिए वी स्क्वायर और ए स्क्वायर के बीच का रिलेशन, वी स्क्वायर और ए स्क्वायर के बीच में का रिलेशन हमको मांगता है। ओके, लिसन टू मी नाउ। तो कैन आई राइट दिस एज v बाई वी नॉट स्क्वायर? अच्छा, आई कैन राइट दिस एज वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। हेलो, यस और नो? सही है ना? देखो ना, दोनों में से वी नॉट स्क्वायर कॉमन निकाल के उधर लेकर गया। अरे भाई, करेक्ट है। तो वी स्क्वायर विल बिकम माइनस ए स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर। कैन आई से दिस इज योर वाई एक्सिस? हाँ, इसको मैं y इज एम एक्स प्लस सी से अगर डिनोट करूं इस इक्वेशन को, कोई बता सकता है m क्या रहेगा, स्लोप क्या रहेगा इक्वेशन में? हेलो, व्हाट विल बी m? हेलो, प्लीज टेल मी व्हाट विल बी m स्टैंड फॉर? अरे x इज ए स्क्वायर ना बाबा, देखो तो, ना तो करो, मैथमेटिक्स है ना प्लीज। व्हाट विल बी m स्टैंड फॉर? एंड व्हाट इज द इंटरसेप्ट स्टैंडिंग फॉर? y intercept not square. Can anyone tell me which equation will come? Which equation will come, baba? क्या आएगा? A B C D C. C. Okay, fine. So answer is C. Okay. You must be thinking this is an ellipse. No, it is not an ellipse. It would be an ellipse when the graph would have been asked V versus A. But यहाँ पर the graph is asked V square by A square. Hello, are you getting it ना? ठीक है? Yes Fine. sir. So how you do it? Most of the questions are based from synopsis only. Question number 5 पर आता है. In a vertical U tube oscillates simple harmonically if the tube contains 1 kg of mercury and 1 centimeter contains 20 gram. So can anyone tell me how much will be the length of the column then? अरे भाई 1 centimeter contains 20 grams. अंदर कितना भरा हुआ है? 1000 ग्राम। तो कितना लेंथ कितना रहेगा ट्यूब का जिसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है? हेलो, 1 centimeter is 20 gram. So 1000 ग्राम will be L. Yes or no? Hello. So L will be 50 centimeter. So can I say if this is the U tube, and उसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है ऐसे,
and the whole length is L. ये पूरा जो length है that is L. यहाँ से यहाँ तक. We are assuming that this part is negligible है, मतलब ये जो horizontal part है ये negligible है, पूरा length जो है वो vertical में ही है. Can I say this is L? अब मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ यूट्यूब क्या होता है. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ यूट्यूब इज 2 पाई अंडर रूट h by g, where h is half of the liquid column. ये can I say h will be L by 2? सब सिनॉप्सिस में हमने पढ़ा है. ये हो जाएगा L by 2g. L by 250, L is 50 ना, 25 सेंटीमीटर by g is 10. इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. दैट इज 0.25 by 10. That is, you can approximate and get the resultant answer, whatever answer comes. Hello? Yes or no? हेलो, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आप लोगों ने भाई? ये इंपॉर्टेंट है. ये डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर यूट्यूब? Yes, sir. If you don't remember, you should have it in your synopsis book at least. ये मैंने प्रूफ सिखाया है इन द synopsis derivation. Remember it. Question number 9 पर आते हैं, which is a nice question. This is a very good question. ये कॉन्सेप्ट पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. I'll discuss it again. Two pendulums X and Y of time period 4 and 4.2 are made to vibrate simultaneously. They are initially in the same phase. Same phase means they are starting together. If they start from the extreme, both are starting from extreme. If they start from mean, both will start from mean at the same time. After how many vibrations of X, they will be in the same phase. Okay. Can anyone tell me out of X and Y who is faster? Who is faster? Please reply. Huh? We are doing less couple of questions only. Please reply at least. Who is faster? So why? Y is not faster. Y को ज्यादा टाइम लग रहा है बेटा. हेलो. Yes, yes. I thought it's 2 Okay. seconds. Okay. Sorry. Listen. T is 4 seconds and Ty is 4.2 seconds. Can I say this is faster? Pay attention over here. And this is slower. Now I'm writing a statement and then I'll try to explain it to you. मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. क्या बोल रहा है ये? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर they will again be in phase. Initially they were starting together. Now they will again be in phase when the faster pendulum, ये ट्रिक है पूरा, completes one more oscillation than the slower one. Do you agree with me? ये समझा आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हेलो. सर्कुलर मोशन में भी ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है. देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक 200 मीटर का रेस है and there are two persons A and B, और suppose one is fast and other is slow. ये तो बहुत स्लो है, ये तो ऐसे चल रहा है. रन ये इधर है. बट कैन आई से ये फास्ट वाला क्या करेगा? ये फटाफट एक राउंड मारेगा and then again he will come back and both of them will meet here. Do you understand what am I telling you? Yes, sir. So can I say the faster one is completing one more oscillation than the slower one and they will again meet? Hello. Yes, sir. हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है
दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट. ये ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट का. एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लिक होता है तो इजी हो जाएगा. तो कैन आई से दे विल अगेन बी इन फेज. अगर उसको कोडिंग में लिखते हैं, अगर उसको बराबर लिखना है, तो कैन आई से n टाइम्स n+1 टाइम्स t shorter is n times t longer. Can anyone tell me who will be the shorter pendulum? दोनों में से. अरे भाई पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? मुस्तफा सर ने सिखाया रहेगा ना. व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम? मैंने भी पढ़ाया ऑसिलेशन में. 2 पाई रूट ऑफ L by G. एल बाई जी. तो कैन आई से जिसका टाइम छोटा उसका लेंथ छोटा. हेलो. Yes, sir. कैन आई से दिस विल बी टी शॉर्टर ना, एंड दिस विल बी टी लॉन्गर. ये याद रखना भाई. So can I say n+1 times of t shorter? T shorter कितना है? 4 है. And this will be n times of t longer. T longer is 4.2. ये इसका ट्रिक है, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा 4n+4 is equal to 4.2n. So 0.2n will become equal to 4. तो n will become कितना हो जाएगा भाई? 20 oscillations. Can anyone tell me who is covering n oscillations? Who is covering n oscillations, Baba? Hello. Longer one. अरे देखो ना. So this is for the longer one. So who is covering how much? How much is shorter covering? n+1. That is for the shorter one. Or I can say the faster one. And this is the slower one. So 21 oscillations is completed by X. That is the faster one. This is the answer. And this is very important from the point of view of NEET and JEE. दोनों में पूछा जाता है. उसका ट्रिक ये है. n+1 times t shorter is n times t longer. n+1 times t shorter is n times t longer. n+1 times t shorter is n times t longer. Hello, are you there with me? Yes or no? Yes or no? Yes, ठीक है. sir. हाँ भाई. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11 पर आता है. एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना, सब देखे हुए क्वेश्चन है. सिनॉप्सिस अगर आपने एकदम तगड़ा किया है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग बनाया ना सिनॉप्सिस, तो आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू सिनॉप्सिस को रेफर करो. ये चैप्टर ऐसे है, सिनॉप्सिस बेस्ड है पूरा. Two bodies P and Q of equal masses. So can I say MP is equal to MQ? या M1 is equal to M2? Same है. Are suspended from two massless springs of force constant K1 and K2. So K1 is different and K2 is different. If the two bodies oscillate vertically such that the maximum velocities are equal, so they have given you that. What is same? Can I say maximum speeds are same? So V maximum 1 is equal to V maximum 2. Can anyone tell me the formula for V maximum? Hello. V maximum is what, बच्चा? General formula क्या है उसका? Omega A. Hello, are you there with me? Yes or no? Yes, sir. अच्छा, ओमेगा का फॉर्मूला मालूम है? रूट के बाय एम. अरे सुना है कि नहीं भाई? K is m omega square. So omega will become root k by m. So can I write this as k1 m1 a1, k2 m2 a2. But I know that m1 m2 same है, तो ये तो उड़ जाएगा. So what will be the ratio of the amplitude? मतलब आपको a1 by a2 मांग रहा है. It will become root of k2 by k1. Hello. Yes or no? Yes, sir. हेलो. ये है ना MHT CET में पूछा जाता है. ये इजी सम है एक्चुअली. आर यू देयर विद मी? Yes, sir. ओके. ऐसे सम्स MHT में आते हैं बेस्ड ऑन वन फॉर्मूला. जेई में तो आई डोंट नो, अगर पेपर इजी आया तो ऐसे आ सकता है थोड़ा क्वेश्चन. जनरली MHT में पूछा जाता है. भी आजकल जेई का लेवल भी इजी हो रहा है. बोल नहीं सकते कुछ भी. क्वेश्चन नंबर
14 अगेन फॉर्मूला बेस्ड है। अच्छा ये भी कर लेते हैं 13। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो u वर्सेस एक्स स्क्वायर क्या रहेगा? u वर्सेस एक्स स्क्वायर इक्वेशन क्या रहेगा? पैराबोला। नो 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 नो, u वर्सेस एक्स स्क्वायर, Straight u line. वर्सेस एक्स नहीं, स्ट्रेट लाइन रहेगा ना। हेलो यार देखना, ये y है, ये पूरा x है, तो ये तो m हुआ ना। अच्छा थोड़ा ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना, वो सिली मिस्टेक में चला जाएगा फिर वो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही सीधा मार्क कर देते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। दिस इज व्हेन u वर्सेस x आएगा। हेलो थोड़ा ध्यान रखो भाई, ये क्या सब सिली मिस्टेक्स में चले जाता है ऐसे। एग्जाम के बाहर निकल के समझ में आएगा कि तो देर हो गया। ओके अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेते हैं, अभी 12 वाला आ गया। 12 इज नथिंग बट अ कंपाउंड पेंडुलम। डज एनीवन नो द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड पेंडुलम? हेलो हेलो हेलो, कंपाउंड पेंडुलम सिखाया ना मैंने? हेलो, हैव आई डन दिस इन द सिनॉप्सिस? कंपाउंड पेंडुलम Yes, sir. क्या था फॉर्मूला कंपाउंड पेंडुलम का? या तुम लोग ऐसे पत्थर लगा 2r दिया by है। 3g. और इसको इधर अगर हम वही चीज इधर लेकर आते हैं तो दिस इज आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस इज आई। कैन आई से द लेंथ विल बिकम एल फ्रॉम द सी जी? ये किया है हम लोग ने? प्लीज टेल मी, हैव वी डन दिस इन द सिनॉप्सिस? Yes, sir. क्या फॉर्मूला है, किसी को आता है टाइम पीरियड का? 2 पाई रूट ऑफ Pi root I by mgl. mgl, where I is the moment of inertia about the point of suspension and L is the length between the point of suspension and the center of gravity. ये चीज हमको आना चाहिए। इसके देखो फॉर्मूला बना तो कुछ काम होगा ही नहीं यार। अभी क्या बोला है, एक डिस्क है, डिस्क, और इट इज pivoted about the rim. The time period of oscillation of perpendicular to the plane. ओके तो यहां से तो कैन आई से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बीच में है, तो ये डिस्टेंस एल की जगह आर हो गया ना, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो इसको अगर हम लिखने जाएंगे तो व्हाट विल बी आई अबाउट दिस पॉइंट? यू नो इट, आई हैव टोल्ड यू 3/2 mr square, एंड एल विल बिकम इक्वल टू आर। सो टाइम पीरियड क्या हो गया भाई? क्या होता है 2 पाई रूट ऑफ 3/2g। हेलो हेलो, again it is formula based only, so we can do it, huh? Not a big deal. We'll come to question number 17. और बाकी जितने भी क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे ना तो दे आर ऑल फॉर्मूला। 16 वाला भी अच्छा ही है, ये शायद मैंने सिनॉप्सिस में एक्सप्लेन किया है। यदि मीन पोजीशन इसका सेम रहता है बट टाइम पीरियड विल रिमेन द सेम, इसका मीन पोजीशन नीचे आ जाएगा। हेलो, क्या ये सिखाया मैंने सिनॉप्सिस में? हेलो, रिमेम्बर मैंने फर्क बताया था, एक पेंडुलम ऐसे होगा। अच्छा ठीक है, को बता सकता है मीन पोजीशन कहाँ आएगा इसका? ये 16 क्वेश्चन का मीन पोजीशन कहाँ आएगा? Sin theta by k. हाँ, क्यों? क्योंकि नीचे वाला फोर्स इज mg sin थीटा, तो एक पॉइंट ऐसे आएगा where mg sin theta will become equal to kx naught. Let this be x naught. So can I say kx naught ऊपर by the spring is balancing mg sin theta? So x naught is the point where the net force is 0, will become mg sin theta by k. And ये तो मीन पोजीशन है उसका, but time period is going to remain the same, that is 2 pi root of m by k. So there is only change in the mean position.
but 2 pi root of m by k is going to remain the same. So this will be the answer. Okay. If you see the subjective also ना, सब सेम समझना, मतलब आप खुद बैठ के भी कर सकते हो टाइम पास. आज आप बैठ जाएंगे तो आराम से पूरा सब खत्म हो जाएगा. जस्ट कीप द फॉर्मूला शीट्स इन फ्रंट ऑफ यू. फॉर्मूला कौन सा जो सिनॉप्सिस शीट आपने बनाया है ना, उसको सामने रखो, पेज पलटाओ, अपने आप आना शुरू होगा आपको. क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं. अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया सिनॉप्सिस में. हेलो, बताया गया? इसको किस मेथड से सॉल्व किया जाता है, किसी को याद आ रहा है? हेलो हेलो, I had done this. Reduced mass. Reduced mass, yes, reduced mass concept. What will be the reduced mass का formula? M into M upon M plus M. m1 m2 upon m1 plus m2 will become बड़ो m छोटो m upon बड़ो m plus छोटो m, and time period रहेगा इसका 2 pi root of mu by k, where mu is m1 m2 upon m1 plus m2. ओके. सो आपको क्या पूछा? आपको फ्रीक्वेंसी पूछा, मतलब उल्टा हो जाएगा. तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रहेगा 1 by t will become 1 upon 2 pi root of k by m1 m2 upon m1 plus m2. तो नीचे m1 m2 आएगा, मतलब आंसर ये आ गया. हेलो हेलो, यस और नो, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज है. ओके, फाइन. ठीक है, अब हम लोग आते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ. 19 वाला भी इम्पोर्टेंट है, सब क्वेश्चंस देखे हुए हैं. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग. द मास एंड द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ द अर्थ. तो एक प्लैनेट की बात हो रही है जिसका मास एंड डायमीटर डबल है, तो ग्रेविटी उधर जाके चेंज हो जाएगा. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जी? gm by r स्क्वायर. क्या ना, मास हो गया 2 गुना, रेडियस हो गया डबल, डबल का स्क्वायर 4, बराबर गया, ये हो जाएगा हाफ. यस और नो? मींस ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द अर्थ. हेलो, डू यू एग्री विथ मी? What will be the time period of oscillation of this planet? And it is the second pendulum on the earth. Easy है यार. Can I say time is inverse to root g? So time period on planet upon time period on earth will become root of g earth upon g planet. Time period on planet I don't know. Earth के 2 seconds है, seconds pendulum बोल रहा है. Gravity upon earth upon gp. So ge upon gp is 2. So time period on the planet कितना हो जाएगा? हेलो, yes or no? Yes, sir. This is combined with gravitation. As you can see, it is just formula synopsis based. देखो, जो डायरेक्शंस मैं आपको देता हूँ ना, वो स्ट्रिक्टली अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई भी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी. अपनी मन मर्जी अगर आप चलाने जाएंगे कि भाई सिनॉप्सिस क्यों पढ़ना है, रिकॉर्डिंग क्यों देखना है, तो आपको नहीं चलेगा. जो चैप्टर में रिकॉर्डिंग चाहिए, दैट आई एम सेंडिंग यू द रिकॉर्डिंग. जो चैप्टर में फिजिकली हमको सॉल्व करना है ऑनलाइन आकर, तो वो उसमें ऑनलाइन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. जैसे मैं कह रहा हूँ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो बेटा. ओके, फाइन. क्वेश्चन नंबर 20 पर आता है. 20. ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, ध्यान दो. द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ 3 सिंपल हार्मोनिक वेव्स. एक है 3 sin ओमेगा टी, दूसरा वाला है 5 sin ओमेगा टी प्लस 37, एंड तीसरा वाला है 15 cos ओमेगा टी.
अच्छा ठीक है, तो अगर मैं इसको रेफरेंस लेता हूँ, इस वाले को, इसको मैं बोलता हूँ ये x1 है, 3 sin ओमेगा टी, तो कोई बता सकता है x2 कैसे बनेगा? 5 sin ओमेगा टी, दिस इज माई रेफरेंस, 0 डिग्री पर पड़ा, बिकॉज ये दिस इज प्लस 0 ना, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है? अगर ये इसका फेजर बनाते हैं हम लोग, तो ये 3 का मैग्नीट्यूड है ना, 3 यूनिट्स का। हेलो, यस और नो? अच्छा दूसरा वाला, इसका x2 का रेफरेंस क्या रहेगा बेटा, कितना यूनिट्स का रहेगा? 5 यूनिट्स का, और ये कितना डिग्री बना रहा है पहले वाले से? आप देख सकते हैं प्लस 37 है, तो ये 37 डिग्री है। आर यू अग्रीइंग विद मी? हेलो बाबा, आई एम कन्वर्टिंग दिस इनटू वेक्टर लैंग्वेज। तुमको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एक्चुअली आई एम कन्वर्टिंग दिस इनटू फेजर लैंग्वेज, इसको फेजर का लैंग्वेज बोलते हैं। फेजर का लैंग्वेज है ना, आपको इलेक्ट्रिसिटी में समझ में आएगा, वो थर्ड बुक है उसमें समझ में आएगा। अभी फिलहाल फेजर, इसको फेजर बोलते हैं। अभी फिलहाल वेक्टर पकड़ लो इसको, ठीक है? अच्छा 15 cos ओमेगा टी, ओके, cos ओमेगा टी को कैसे लिख सकते हैं? हेलो, opposite direction. ओके, cos ओमेगा टी को कैसे लिखूंगा? टी प्लस 90। sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, या इसको ऐसे देखो, cos का दो लैंग्वेज है, cos थीटा को लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, एंड साइन ऑफ क्या भाई, 90 माइनस थीटा। सही है? हेलो हेलो हेलो, यस और नो बेटा? कौन सा लैंग्वेज सही रहेगा? कौन सा लैंग्वेज सही रहेगा भाई? हेलो, प्लीज टेल मी, इस cos ओमेगा टी को कैसे एक्सप्रेस करूंगा मैं? देखो दो तरीके लिखने हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी, विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द अदर फेजर्स? देखो ओमेगा टी पहले आना चाहिए। अरे भाई, दिस इज ओमेगा टी प्लस 37 ना, दिस इज ओमेगा टी प्लस 0 ना। हेलो, यस सर। अरे कुछ समझा क्या भाई? 5 साइन ओमेगा टी प्लस 37, तो कौन सा वाला फिट करेगा? कोई बता सकता है कौन सा वाला फिट करेगा? पहला वाला के फर्स्ट वाला? हाँ, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अच्छा, आई थिंक इज इट अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन? देखो जरा क्वेश्चन देखो, इट शुड बी माइनस 15 cos ओमेगा टी या 15 cos ओमेगा टी है? जरा पढ़ के देखो, क्वेश्चन देखो। Minus. हाँ, मुझे जब तक याद आ रहा है इट इज माइनस 15 cos ओमेगा टी, तो ये यहाँ पे माइनस साइन मिसिंग है, माइनस है, माइनस 15 cos ओमेगा टी। अच्छा, अब मजा आएगा, सब लोग इधर ध्यान दो। तो दिस इज एक्चुअली रिटन एज व्हाट? ऐसा लिखा जाएगा ना बेटा? हेलो, आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट और नॉट? हेलो हेलो यार, बोलो। तो ये तो चलेगा नहीं फर्स्ट वाला, जिसको अगर बीच में माइनस साइन ले लेता हूं मैं, तो ये देखो, ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ, ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, एंड ये तो दोनों माइनस ही है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यस और नो? अब बोलो कौन सा वाला मैच करेगा? आप कोई बता सकता है कौन सा वाला मैच करेगा? हाँ, फर्स्ट और सेकंड? हेलो, दिस विल मैच ना अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन। हेलो, गेटिंग इट? या तो ये सब, या तो यार ये सब अगर आपको करना ही नहीं है, छोड़ो। आप बोलेगे सर ये सब मुझे समझता ही नहीं है मैथमेटिक्स, छोड़ो। तो आप देख सकते हैं ये है cos ओमेगा टी। cos और साइन में फर्क कितना होता है? अरे भाई, ये cos है ना,
कॉस और साइन में कितना फर्क होता है, कितना फेज डिफरेंस होता है? 90 का। बट कैन आई से इट इज नॉट +15, इट इज -15, तो -15 नीचे बनेगा। हेलो, आर यू गेटिंग इट? अरे भाई अगर ये 15 cos ओमेगा टी होता तो मैं ऊपर बनाता, वर्टिकली अपवर्ड बनाता, मगर ये -15 cos ओमेगा टी है तो ऊपर के बजाय नीचे बना हुआ, बिकॉज एम्पलीट्यूड उल्टा हो चुका है। यस और नो? हेलो, आर यू गेटिंग इट? हेलो, अब एक काम करता है, इसको स्प्लिट करता है यार, बोलो इसको स्प्लिट करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। 5 sin 37, yes or no? And this component will become 5 cos 37. What is cos 37 and what is sin 37? 3/5, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। हेलो, यस और नो? और इसका एम्पलीट्यूड तो 15 है ना नीचे वाले का, तो ये 15 और 3 तो नीचे 12 आएगा, और ये कितना हो गया, 3 और 4 दैट इज 7। तो रिजल्टेंट तो ये आएगा। यस और नो? हेलो, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ 12 and 7? अप्रोक्सीमेटली रूट ऑफ 12 square plus 7 square, तो 144 plus 49। हेलो, अप्रोक्सीमेटली 13.9 के करीब आएगा, 14 के करीब आएगा। ये तो मैच नहीं करेगा ना किसी में भी, 18 थोड़ी है, तो आंसर रहेगा नन ऑफ दीस। हेलो, आर यू गेटिंग इट? अरे प्लीज से यस और नो मैन, क्लियर है? हेलो, Yes. नाउ we come to question number 23. A particle is attached to a vertical spring and pulled down by a distance of 4 centimeter below the equilibrium position and released. The initial upward acceleration is 0.5 meter per second square. अच्छा, तो कैन आई से ये जो स्प्रिंग था वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर था, ये उसका नेचुरल लेंथ है। फिर जब मास लगाएंगे तो ये और नीचे झुक जाएगा, इसको बोलते हैं x0। हेलो, ये उसका कौन सा पोजीशन है, मीन है। बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि मीन पोजीशन के भी नीचे खींच लिया, कितना खींचा? हेलो, कितना पुल कर रहा है? 4 cm, yes or no? And the initial upward acceleration, तो हमको मालूम है कि ये एक्सट्रीम पोजीशन बनेगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा एट दिस इंस्टेंट? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहां से खींच रहा है इतना, छोड़ दिया, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, ठीक है, चलो बोलो कैसे करेंगे। यस सर, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम? ओके, हेलो, डू यू नो दिस? डू यू नो दिस? हेलो 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 हेलो, यस और नो? अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड दिस एक्स? ये एक्स है ना हमारा, यहां से खींच रहा है इतना, कैन आई से ए इज ओमेगा स्क्वायर एक्स? या तो ये फॉर्मूला रहने दो, ये फॉर्मूला रहने दो, मैं ए इज ओमेगा स्क्वायर एक्स से ही प्रूफ करके बताऊंगा, ये फिर इसमें पुट करेंगे वो सब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ए इज ओमेगा स्क्वायर एक्स से ही प्रूफ करते हैं। ए इज ओमेगा स्क्वायर एक्स, देखो a by x is omega square, so omega will become root of a by x। एक बार ओमेगा मिल गया तो हमको तो फ्रीक्वेंसी मांगती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मांगता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा ही मांगता है, तो मिल गया आंसर।
is 0.5 by 4 centimeters. 4 into 10 is to minus 2. This omega you will get as कितना आएगा देखो ना, ये हाफ, ये 8, 100 by 3 point something 9 के ऊपर जाएगा, ये 3 point something आएगा. ठीक है. हेलो, क्यों ये इस्तेमाल किया? क्योंकि ए और एक्स दिया था ना क्वेश्चन में, इसलिए. अगर एम और के दिया रहता तो मैं टी इज 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के यूज करता. फाइन. क्वेश्चन नंबर 25. For a particle executing SHM, the kinetic energy is given as, kinetic energy का इक्वेशन क्या है? E naught cos square omega t. Can anyone tell me ये इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? ये इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? हेलो हेलो हेलो. E naught. E naught है. E naught. मैंने आपको हमेशा बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को छोड़ के जो भी बचता है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू. ओके, बिकॉज cos 0 डालेंगे तो 1 हो जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा, तो ये E naught बचेगा विच इज द मैक्सिमम वैल्यू. सो कैन आई से के मैक्सिमम इज E naught. बट हमको SHM में मालूम है कि के मैक्सिमम is equal to P maximum is equal to T. Hello, do you know this thing? Yes, sir. अरे हाफ के स्क्वायर होता है, याद है ना? तो दैट इज E naught only ना, because के maximum and P maximum are E naught only. So this will be the resultant answer, that will be E naught only. Because के maximum का वैल्यू P maximum का वैल्यू सेम है, प्रोवाइडेड इनिशियल पोजीशन पे कोई एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी नहीं दिया है उसको. मेरी बातें शायद समझ में नहीं आ रही है आपको. ठीक है, फाइन. क्वेश्चन नंबर 28. ये भी इजी है. स्प्रिंग सीरीज पैरेलल. A particle executes linear simple harmonic motion with an amplitude of 2 centimeter. When a particle is 1 cm from the mean position, the magnitude of the velocity at that instant is equal to that of its acceleration. ये दिया हुआ है. Find the time period of oscillation. ये चीज एकदम इजी है. V is equal to A. V का इक्वेशन हमको मालूम है, is omega under root A square minus x square. And A का फॉर्मूला मालूम है ना, omega square x magnitude wise. तो ये ओमेगा और ये ओमेगा कट जाएगा. अंडर रूट ए स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स इज 1. ये 3 रूट 3 इज ओमेगा. ओमेगा इज 2 पाई बाई टी. सो टी इज गोना बिकम 2 पाई बाई रूट 3 सेकेंड्स. करेंगे ना? ये दिया था ना आपको, गिवन है. दिस इज गिवन. वेरी क्लीन एंड वेरी इजी. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए. ओके, सो दैट विल बी द केस व्हिच इज देयर. क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं. इट इज अ गुड क्वेश्चन. In order that the resultant path of superimposing two mutually perpendicular SHMs can be a circle. Okay. देखो ये क्या बोलना चाह रहे हैं. In the video have I done Lessage's figures? हेलो, ये सिखाया मैंने आपको? हेलो यार बोलो ना, लास्ट ईयर का वीडियो है. ये सिखाया मैंने आपको? हाँ No, कि ना? sir. नो. हाँ, तो ये सुनो अभी इधर. ये सुनो. ये जनरली ये ऐसे कोई डिफिकल्ट वाला चीज नहीं है. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ Lessage's फिगर्स इज देयर फॉर यू ऑल.
एंड खाली आई थिंक लेसार्जेस फिगर्स नहीं हुआ है एंड एक छोटा डैम्पिंग का पार्ट नहीं हुआ है, बाकी एवरीथिंग इज डन. लेसार्जेस फिगर्स क्या कह रहा है? सपोज देयर आर टू एसएचएम्स. Suppose there are two SHMs, one along the y-axis, ये mean, extreme and extreme, ये ऐसे यहाँ से. This is y का equation, y में particle ये mean है, ये suppose upper extreme है और ये lower extreme है. y-axis में SHM है. और क्या मैं कह सकता हूँ? और एक SHM है जो x-axis में सुपर इम्पोज किया जा रहा है इसके साथ. ये मीन है, ये राइट एक्सट्रीम है और ये लेफ्ट एक्सट्रीम है. क्या है? अगर इसको मैं अगर इधर एक्सटेंड करूं ऊपर, अब गौर से देखना तो समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा. सपोज एक पार्टिकल है, ये लो पार्टिकल बनाता है, जिसके ऊपर दोनों एसएचएम्स हमने सुपर इम्पोज किया. मतलब ये एसएचएम वाई एक्सिस को मैंने पकड़ा ए साइन ओमेगा टी प्लस 0, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन, मतलब एंड एक्स को भी मैंने पकड़ा ए साइन ओमेगा टी प्लस 0 मतलब दोनों मीन से स्टार्ट कर रहे हैं. तो दोनों का अगर मतलब यहाँ का पार्टिकल भी मीन है, पार्टिकल तो एक ही है, बट ये एसएचएम इधर से ही चालू हो रहा है एंड ये एसएचएम इधर से चालू हो रहा है. यस और नो? तो दोनों को मिलाकर जो यहाँ पर पार्टिकल है वो यहाँ से शुरू होगा. देखो यार, हेलो, आर यू गेटिंग इट? हेलो, हाँ ना बोलो यार. गेटिंग इट? एक्चुअल पार्टिकल ये है, एक्चुअल पार्टिकल हमारा ये है. किधर गया? ओह माय गॉड. व्हिच क्वेश्चन वाज दिस? एक्चुअल पार्टिकल हमारा ये है, एक्चुअल ये है. दिस इज द एक्चुअल फिगर. अच्छा, अभी सपोज ये ऊपर गया, तो ये एसएचएम तो ऐसे ही करेगा ना, इधर जाएगा और ये इधर जाएगा. अब कहना है कि दोनों को मिलाकर पार्टिकल यहां पर पहुंच गया. अरे देखो ना, दोनों का ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन इधर आता है ना. हेलो, हाँ ना बोलो. अरे यार बोलो ना. करेंगे? अब ये वापस आया, ये भी वापस आया, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन फिर से इधर आ गया. मतलब ये पार्टिकल कैसे जा रहा है? ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर ये उधर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाके फिर से इधर आएगा. यस और नो? हेलो, इस पे हाँ ना बोलो यार, बहुत अच्छी चीज है. यस और नो? Yes, sir. मतलब दो एसएचएम्स को अगर हम मिक्स करेंगे ना, तो आपको इक्वेशन मिलेगा स्ट्रेट लाइन का. कैसे स्ट्रेट लाइन का? अगर इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्स का इक्वेशन इज ए साइन ओमेगा टी एंड वाई का इक्वेशन इज ऑल्सो ए साइन ओमेगा टी. कैन आई डिवाइड बोथ ऑफ देम? कैन आई से एक्स बाय वाई इज नथिंग बट 1, सो वाई इज इक्वल टू एक्स. अरे भाई, वाई इज इक्वल टू एक्स इज नथिंग बट व्हाट? इक्वेशन ऑफ व्हाट सर? अरे कुछ बोलते नहीं हो तुम लोग. यस और नो? हेलो. Yes, sir. इस फिगर को बोलते हैं लिसाजिस फिगर्स. मतलब ये जो फिगर आपको दिखाई देगा ना, आपको ऐसे लाइन दिखाई देगा. अगर आप सीआरओ का नाम सुना है आप लोगों ने? सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये सब इंजीनियरिंग के पहले साल की चीजें है. ओके, फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में आपको सीआरओ पे डिजाइन बनाया गया रहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में चल रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस में एसएचएम कर रहा है, तो दोनों को मिलाकर जो फिगर बनेगा उसको कहते हैं लेसार्जेस फिगर्स. हेलो, आर यू देयर विद मी? Yes, sir. अब इसको जो फिगर मांग रहा है, यहाँ पर जो फिगर वो मांग रहा है, यहाँ पर वो सर्कल का फिगर मांग रहा है. मतलब उसका जो लेसार्जेस फिगर बनना चाहिए, कह रहा है वो सर्कल है. अभी सर्कल के लिए क्या होना चाहिए? सर्कल के लिए अगर मैं यहाँ पर एक फिगर बनाता हूँ, देखो इधर मेरी बात सुनो. तो सर्कल के लिए अगर मैं फिगर बनाऊं, यहाँ पर ही बना देता हूँ मैं. ओके, यहाँ पर अलग कर लेते, चलो ये है.
ओके, सर्किल के लिए क्या करना है, सर्किल के लिए आपको क्या करना है, एक पार्टिकल मीन से चालू हो रहा है, मतलब सपोज मैं आपसे कहूँ कि x इज a sin ओमेगा t, मतलब ये तो यहां से चालू कर रहा है, और मैं कहूँ y इज a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, मतलब x और y के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, हेलो, pi/2. पाई बाई 2, मतलब ये पार्टिकल इधर है, ये पार्टिकल इधर नहीं है, ये पार्टिकल इधर है, यस और नो, हेलो, Yes, sir. ये तो पढ़ा चुका हूं ना मैं, ये पार्टिकल इधर है, तो अगर मैं दोनों का रिजल्टेंट बनाने जाऊँ वो एक्चुअल वाले ग्राफ पे, हेलो, तो कहना से ये इधर आएगा, हेलो, क्या हो रहा है, कौन सा वाला सम था, तो ये दोनों को अगर मिलाने जाओ तो कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, दोनों का रिजल्टेंट पॉइंट कहाँ आ रहा है यार, हेलो, बोलो ना, ये इधर आ रहा है बेटा और ये इधर आ रहा है, तो कहना से इसका रिजल्टेंट पॉइंट इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो, Yes, sir. अब ये जाएगा इधर, ये जाएगा नीचे, तो उसको मीन की तरफ जाना है, अब दोनों का रिजल्टेंट पॉइंट कहाँ आएगा, इधर आएगा, देखो, देखो ना भाई, Yes, sir. अब ये वापस जाएगा, अरे बहुत मस्त चीज है यार, ये नीचे जाएगा और दोनों का रिजल्टेंट पॉइंट कहाँ आएगा, इधर आएगा, और वो वापस जाएगा, ये इधर जाएगा, तो दोनों का रिजल्टेंट पॉइंट ये आएगा, तो कैन आई से द Lissajous फिगर विल बी व्हाट, अ सर्कल प्रोवाइडेड द एम्पलीट्यूड्स आर द सेम, सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, Yes, sir. Yes, sir. अगर दोनों के एम्पलीट्यूड्स अलग हुए तो क्या बनेगा, दोनों के एम्पलीट्यूड्स अगर अलग हुए तो क्या बनेगा, Ellipse. एलिप्स बनेगा ना, अगर ये फिगर को अगर हम बराबर से देखते हैं, देखो ये इक्वेशन को अगर आप गौर से देखो, तो क्या ये इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ a cos ओमेगा t, एंड ये इक्वेशन को तो sin ओमेगा t लिखूंगा, तो कैन आई से x इज a cos ओमेगा t, सॉरी a sin ओमेगा t, एंड y इज a cos ओमेगा t, स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो क्या होएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, हेलो, इक्वेशन किसका है ये, हेलो, हेलो हेलो हेलो, यस और नो, Yes, तो sir. ये क्या मांग रहा है, ये सर्किल मांग रहा है, सर्किल मांगने के लिए क्या होना चाहिए, फेस डिफरेंस दोनों के बीच में सेम होना चाहिए एंड एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तो आंसर ए बनेगा, और अगर यहां पर एलिप्स मांगता ना ये, तो एलिप्स के लिए आंसर क्या होता, द एम्पलीट्यूड शुड बी डिफरेंट एंड द फेस डिफरेंट, मतलब ये सी होता, सी में अगर एलिप्स आता, एंड इधर क्या आएगा, सर्कल आएगा, एंड स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होगा, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम होगा या एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा तो भी चलेगा, बट दोनों सेम फेज में होना चाहिए, मतलब ये भी साइन है, ये भी साइन ही होना चाहिए। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द Lissajous फिगर्स, हेलो 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 हेलो, Yes, sir. इजी है एकदम, एकदम इजी, खाली मैच करते जाना है भाई, जो फिगर बनेगा वो आपके सामने आ जाएगा, जिधर से भी पार्टिकल स्टार्ट करेगा, नीचे से स्टार्ट हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको फिगर बनाने का तरीका मैंने बता दिया है। ओह माय गॉड, ठीक है, चलो आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आता है, उसको सॉल्व ही कर लेना आज ने, आज बैठ के, ये कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, यू कैन सिट एट वन टाइम ओनली 3-4 आवर्स एंड पूरा भी खत्म कर सकता है, ओके, या कुछ हो नहीं। A particle executes SHM with an amplitude of 20 centimeter. So they are telling you that the amplitude is 20 cm. Time period is 12 seconds.
What is the minimum time required to move between 2 points 10 centimeter on either side? अच्छा, आपको याद रहेगा, मैंने आपको एक इजी शॉर्टकट दिया था, याद आ रहा है किसी को? बोलो, कुछ याद है आपको यार? बोलो। ये लेफ्ट एक्सट्रीम है बेटा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है? हेलो 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 यार, स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। बोलो, T/4. दिस इज x0 एंड दिस इज x is plus a. अच्छा, मैंने आपको बताया था बीच में रहता है x is a/2. कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए? किसी को बताया मैंने? हेलो, कितना 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 टाइम लगेगा? हैव आई टोल्ड यू ऑल? नहीं नहीं, स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया मैंने कैसे निकालते हैं, आप इक्वेशन से मत निकालो। हैव आई टोल्ड यू ऑल? प्लीज से यस और नो, इफ नो देन आई विल टेल यू। हेलो, So you find phase at that point. हाँ, यू फाइंड फेज एट दैट पॉइंट। ये हाफ का फेज है। हाफ का फेज कितना होता है? हाफ मतलब कितना डिग्री? 30. 30 डिग्री। 360 को लगेगा टी, तो 30 को कितना लगेगा? 360 को लगा टी, तो 30 को कितना लगा? T/12 लगा ना? हेलो Yes, sir. भाई, ये आपको बताया था ना मैंने, ये हाफ है ना, हाफ का कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री होता है। मैंने फिर आपसे क्या कहा था कि 360 को लगेगा टी, तो 30 को कितना लगेगा? T/12। यस और नो? Yes, sir. अच्छा, इसका फेस कितना है? इसका फेस कितना है? एक्सिस ए का फेस कितना रहेगा? 90। हेलो 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 हेलो, बोलो, 90 को कितना लगा? T/4। अच्छा, कोई बता सकता है यहां से यहां तक कितना डिग्री है? फिर अगर यहां से यहां तक 30 है, यहां से यहां तक कितना है? कितना डिग्री है? 60. 60। तो 60 को कितना लगेगा? T/6. T/6। भाई, कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट देता हूँ। देखो इधर, ये मीन है, इसको रट्टा मारना शुरू करो, ठीक है? ये तो एक कन्वेंशनल मेथड है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया, बाय रेफरेंस सर्कल मेथड। अगर आपको ये सब जल्दी करना है ना, तो आपको याद रखना, ये लगेगा T/4, एक्स इज 0, एक्स इज ए। ये a/2 पर क्या होगा? लगेगा T/12। यहां से लगेगा T/6। इसको रट्टा मार लो। हाँ? हेलो, बहुत काम लगने वाला है। यस और नो? हेलो, यस और नो? Yes, sir. अब क्वेश्चन पढ़ो जरा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एम्पलीट्यूड 20 का है, मतलब ये 20 है। अब कह रहा है इट वांट्स टू टेक द टाइम फ्रॉम 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईदर ऑफ द साइड ऑफ द मेन पोजीशन। मतलब कहां से कहां तक जाना है? अगर आप क्वेश्चन पढ़ के बोलो ना मुझे, बेटा यार कुछ बोलो, कहां से कहां तक जाना है? फ्रॉम वन मिडिल टू अनदर मिडिल ना? अरे भाई, यहां पर है। यस और नो? यहां तक जाना है Yes, कि sir. नहीं? अच्छा, हमको मालूम है जो ये साइड पे होने वाला है वो साइड पे भी होने वाला है, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो व्हाट? T/12. तो ये पूरा टाइम कितना हो जाएगा? T/6. तो T/6 के बारे में कह रही है, तो व्हाट बी द वैल्यू ऑफ T/6 देन? 2. ये आंसर है, गिरेंगे ना? हेलो Yes, sir. हेलो, कुछ नहीं है यार, सिंपल है एकदम। ओके, तो फिर से मैं आपसे कहूंगा कि आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओके, ये याद रखना पड़ेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये होता है T/4। ये यहाँ से बीच में का x इज a/2 पे कितना टाइम लगेगा? T/12। एंड ये लगेगा T/6। ओके, ये लर्न बाय हार्ट कर लेना प्लीज।
एग्जामिनेशन में फटक से आ जाएगा, ना आप सब निकालते बैठेंगे, फीस निकालेगी, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वो भी करेक्ट ही है, बेटर यू डू नथिंग। ठीक है, अब विल कम टू 38, 40 तक कर लेते हैं, टाइम है क्या? हाँ है ना, 40 तक कंप्लीट करते हैं, ये अभी टाइम पास ही है, 37, 38, 40 तक कंप्लीट कर लेंगे। Springs of force constant K, 2K, 4K are connected in series. Series. You know the formula for series? 1 upon K series is? याद आ रहा है किसी को? हेलो, याद है ना? Yes, sir. 1 upon K series का फॉर्मूला क्या है? 1 upon K1, K1 is K, 1 upon K2 is 2K, 4K, डॉट 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 इन्फिनिटी तक है। क्या नहीं, इसे क्या है? ये 1 by K कॉमन निकाल लिया मैंने, ये 1 प्लस हाफ प्लस 1/4, ये किस में आ गया? Infinite series. हाँ, तो व्हाट इज इनफिनिट सीरीज का फॉर्मूला देन? A दिस विल बी upon रिजल्ट a minus upon R. 1 minus r ना, a is the first term, ये हो जाएगा 2, मतलब कैन आई से 1 upon K सीरीज इज 2 by K, तो K सीरीज को उल्टा करने में भूलना है, इज K by 2, एंड व्हाट इज टाइम पीरियड का फॉर्मूला? 2 pi root of m by K इक्विवेलेंट ना, टाइम पीरियड विल बिकम 2 pi root of m by K by 2. हेलो, डू यू एग्री विथ मी? यस और नो? हेलो, ये पैरेलल में होता तो भी इजी होता, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 1 to 4 की कैटेगरी में आता है। ठीक है, आपका सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आई सॉल्विंग। कि ये सब सम्स देखे हुए, इसमें से टोटल सम्स आर कितने हैं यार? 48 सम्स है ऑब्जेक्टिव में, एंड सब्जेक्टिव में देयर आर 28 क्वेश्चंस आई थिंक, तो सब इजी है, आप खुद से सॉल्व करो। मैं एक 39 वाला भी सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये भी देखा हुआ है। अ पार्टिकल ऑफ mass m and unidirectional potential energy is given as this much, alpha plus 2 beta x square. Find the time period. टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए f निकालना पड़ेगा। f कहाँ से मिलेगा इधर? f f f f f f f f, अरे यार बोलो ना, याद है ये? हेलो, ये वर्क एनर्जी पावर में किया, चलो इसका डेरिवेटिव निकालो, कितना होता है? कैन आई से दिस इज नथिंग बट f is minus kx, k क्या हो जाएगा? 4 बीटा, so k is 4 beta, but k is m omega square, so omega square is going to become 4 beta by m, so omega will become root of 4 beta by m, and what is time period? 2 pi by omega, ये कुछ सम है क्या? 2 pi by omega is what man? root of, हेलो, m by 4 beta, ये पूछा है, m by 4 beta आएगा ना? हेलो, यस और नो? क्या आ जाएगा? हाँ, तो ये 4 बाहर निकल के ये 2 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो m by बीटा आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? पाई, मिस्टेक है क्या? ये 2 नहीं होना चाहिए ना? यस और नो? हेलो, क्लियर? Yes, sir. Fine, so this much is enough for today. I'll finish this stuff on Wednesday and Friday. I think so, really comfortable में नेक्स्ट वीक से हम लोग करंट शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीक मतलब मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे खत्म हो जाएगा, फ्राइडे को तो ये खत्म हो ही जाना चाहिए।
तो नेक्स्ट मंडे से आई विल बी डूइंग सम थियरी ऑफ करंट फॉर 1 वीक, दैट विल बी बेस्ड ऑन वीडियो लेक्चर्स, एंड उसके बाद में उसका थर्ड बुक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अभी 3 महीने हमारे को 2 to 3 months we'll be doing that book, and then we'll be going to waves and thermo though Mustafa sir is doing only, so waves I'll be doing and then I'll be jumping to light. तब तक Virav sir will be completing the modern physics का section, so by October it will get over only, ठीक है ना? हेलो, Yes, sir. ठीक है, चलो, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। Thank you, Bye, sir. sir.